وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، صدر العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ کریم کا بڑا ہی فضل و احسان ہے جس ذات عظیم نے کتاب خدا کو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. اس کتاب کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورہ مبارکہ، ایک ایک پارہ، ایک ایک رکوع، بلکہ میں کہوں گا کہ ہر لفظ سے ہدایت چھلکتی ہے. اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس سے ہدایت حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں کرتے. اللہ کریم نے اس کی ابتدا میں بھی اس کو ہدایت قرار دیا، اور بھی کئی آیات میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ میں نے ہدایت کے لیے نازل کی ہے. کہیں ہدی للناس کہا، کہیں ہدی للمتقین کہا. اس میں اصل میں مالک نے بات سمجھا دی ہے کہ ہدی للناس
یہ کتاب ہدایت سارے لوگوں کے لیے بن کے آئی ہے، لیکن ھدی للمتقین، اس سے ہدایت حاصل وہی کر سکیں گے جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، جو تقوی اختیار کریں گے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے بچائیں گے، وہ اس سے ہدایت حاصل کر پائیں گے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں بھی متقی لوگوں میں شامل فرما دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جو کتاب خدا سے ہدایت حاصل کر کے اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کتاب خدا کی ایک آیت مبارکہ جس کا نام آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت مبارکہ ہے، سب سے عظمت والی آیت مبارکہ فضیلت کے اعتبار سے آیت الکرسی ہے۔ حجم کے اعتبار سے ایک دوسری آیت ہے، وہ بھی سورہ البقرہ میں ہی ہے، سورہ البقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع جو ہے، آخری سے پہلا، اس کی پہلی آیت، اس کے بعد صرف 4 آیات رہ جاتی ہیں سورہ البقرہ کی، اس کو بعض مفسرین جو ہیں وہ آیت دین بھی کہتے ہیں۔ اس میں قرض کے اور لین دین کے معاملات کا جو ہے وہ اللہ نے ذکر کیا ہے، تو وہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی میں حقوق اللہ کا ذکر ہے اور آیت دین میں حقوق العباد کا ذکر ہے، اور یہ دونوں آیات قرآن مجید کی بڑی آیات ہیں، جس میں حقوق اللہ ہے وہ عظمت کے اعتبار سے بڑی ہے، جس میں حقوق العباد ہیں وہ حجم کے اعتبار سے بڑی ہے۔ اور یہ دونوں آیات قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہیں جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ شمار ہوتی ہے، سورہ البقرہ۔ آپ کہیں گے کہ فضیلت کے اعتبار سے کہاں اس کو بڑا کہا گیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور بھی بہت ساری روایات تفسیر مظہری کے اندر ذکر ہے، مختلف حوالوں سے، جامع ترمذی کے حوالے سے، مستدرک حاکم کے حوالے سے، مختلف اصحاب سے مروی ہیں۔ میں صرف ایک روایت پڑھوں گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو منذر، ابو منذر ان کا جو ہے وہ ان کی کنیت تھی، مجھے بتاؤ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ ابی فرماتے ہیں کہ پہلے تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، آقا میرے تو علم میں نہیں ہے۔ ابی بن کعب جو تھے یہ قرآن کے بہت بڑے قاری تھے، ان کا شمار قرآن کے بہترین قاریوں میں ہوتا تھا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن سے آقا نے کہا تھا ابی مجھے قرآن سناؤ، تو فرمانے لگے اللہ کے نبی جی آپ پہ تو نازل ہوا ہے، میں سناؤں؟ فرمایا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ ابی فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے، کہنے لگے اسمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آقا نے فرمایا ہاں ابی اللہ نے تیرا نام لے کے ذکر کیا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول، عظمت اور فضیلت قرآن کے حوالے سے بڑی عظمت تھی۔ فرماتے ہیں پہلی دفعہ تو میں نے کہا اللہ کے نبی جی آپ جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میرے تو علم میں نہیں ہے۔ آقا نے پھر پوچھا ابی مجھے بتاؤ، ابو منذر مجھے بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ فرماتے ہیں بے ساختہ میری زبان سے نکلا اللہ لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں آقا کائنات نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وما رمیت سبحان اللہ، یہ ہاتھ، یہ خوبصورت ہاتھ وہ فرماتے ہیں میرے سینے پہ مارا اور فرمانے لگے ابی تو نے سچ کہا، تجھے علم مبارک ہو، تجھے علم مبارک ہو، تو نے سچی بات کی ہے۔ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت مبارکہ آیت الکرسی، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے ایک روایت صحیح البخاری میں مروی ہے، لمبی حدیث ہے، وہ واقعہ سنائیں گے تو وقت بہت گزرے گا، میں صرف اشارتاً ذکر کروں گا۔ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ مسجد میں جمع تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی حفاظت کے لیے
जिम्मेदारी दी गई थी। तो 3 रातें जो वाक़या पेश आया, रोजाना चोर आता, अबू हुरैरा पकड़ते, वो मिन्नत समाजत करके छूट जाता, चला जाता। आकाए कायनात सुबह दरियाफ्त फरमाते, अबू हुरैरा रात की कारगुजारी सुनाते रजी अल्लाह ताला अन्हो। तो जब तीसरा दिन आया तो उसने कहा, अबू हुरैरा आज मैं तुझे एक बात बता देता हूं, एक ऐसी आयत बता देता हूं, अगर तो तू वो पढ़ ले तो सारी रात तू सोया भी रहे तो माल की हिफाजत करने के लिए अल्लाह फरिश्ते को मुकर्रर कर देंगे, मुझे छोड़ देना। अबू हुरैरा कहते हैं मैं तो पहले ही इल्म का मुतलाशी था। अबू हुरैरा तो इल्म के बड़े हरीस थे रजी अल्लाह ताला अन्हो, कि जो अपनी भूख की परवाह नहीं करते थे, जो अपनी प्यास की परवाह नहीं किया करते थे। बाज़ औक़ात भूख प्यास से निढाल होकर बेहोश हो जाया करते थे, लेकिन आक़ाए कायनात की मजलिस से इधर उधर होना गवारा नहीं करते थे कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में नबी रहमत अलैहिस्सलाम का कोई फरमान मेरे सुनने से रह ना जाए। इल्म के हरीस, इसीलिए तो मुहद्दिस ज़मां बने हैं ना। फरमाते मैंने कहा जी बताओ, तो उसने मुझे कहा कि अबू हुरैरा अगर तू आयतुल कुर्सी पढ़ ले, अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता तेरी हिफाजत के लिए, तेरे माल की हिफाजत के लिए मुकर्रर कर दिया जाएगा। तू सोया भी रहे, दुनिया की कोई ताकत, कोई शर जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सुबह मैंने नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सारी बात जो है वो जिक्र की। आका ने पूछा, मैंने बताया। आका मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा बात तो वो है, वो बहुत बड़ा झूठा जो तेरे साथ बात करके गया है ना, है सबसे बड़ा झूठा, लेकिन बात सच्ची कर गया है। और फिर आका ने फरमाया कि वो शैतान था, वो शैतान था, सबसे बड़ा झूठा है लेकिन बात सच्ची कर गया है। यहां से तस्दीक होती है, एक तो इस बात की कि इस आयत का नाम आयतुल कुर्सी है, और दूसरा इस बात की कि अगर रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, ये ऐसी अजमत वाली आयत है कि अल्लाह करीम उस बंदे की भी हिफाजत फरमाते हैं, उसके माल की भी, उसकी औलाद की भी हिफाजत की जाती है। और तीसरी रिवायत इसके हवाले से पढ़े और आयत को शुरू करें। सैयदना अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सुनन निसाई की रिवायत है, सिलसिला हदीस सहीहा में मौजूद है। फरमाते हैं कि नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हर नमाज के बाद, ये जुमला याद रखना है, यानी नमाज अदा करके, बगैर नमाज के नहीं, नमाज अदा करके, यानी आका ने अगर फजीलत बताई है तो पहले नमाजी बनाया है। हमारे बहुत सारे दोस्त, पहले भी कई दफा ये जिक्र हुआ है, वजीफा पूछते भी हैं, वजीफा करते भी हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। फिर बाद में कहते हैं जी असर ही नहीं होता, बड़े वजीफे किए जी असर ही नहीं होता। भाई वजीफे में तासीर पैदा करने के लिए ये जरूरी है साथ नमाज अदा की जाए, नमाज की पाबंदी की जाए। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कुछ सही इफेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह को नाराज करके तो फिर हम वजीफा करते फिरते हैं। तो फरमाया कि वजीफा करना है हर नमाज के बाद, नमाज पढ़े। फिर फरमाया कि जो बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ने को अपना मामूल बना लेता है, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है, उसके और जन्नत के दरमियान रुकावट सिर्फ किस चीज की रह जाती है जी? मौत की रह जाती है। सिर्फ मौत रुकावट है उसके और जन्नत के दरमियान। ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है मेरा, लेकिन जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं ना पहले पारे में सूरह अल-बकरा में फरमाया कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर उन लोगों के लिए जो अल्लाह से डरने वाले हों, उनके लिए आसान ही है। जिनके दिल में रब का खौफ नहीं है, जिनके दिल में इस बात का एहसास नहीं है कि कल हमने अल्लाह के हुजूर खड़े होना है, जवाब देना है अपने अमाल का, उनके लिए तो मुश्किल ही मुश्किल। उनके लिए तो नमाज पढ़ना ही मुश्किल है, आयतुल कुर्सी कहां से पढ़ेंगे। बहुत सारे दोस्त जो हैं इसमें बड़ी कोताही कर जाते हैं। सच्ची बात है, इतना बड़ा अमल है, बड़े जो वो देखे गए हैं, इधर इमाम साहब सलाम फेरते हैं, उधर वो दोस्त खड़े होके सुन्नतें अदा करना शुरू कर देते हैं। कोई वजीफा नहीं करेंगे, कोई बात नहीं कर, कोई जो है वो अल्लाह के नबी सल्लम की बताई हुई दुआ नहीं पढ़ेंगे। और इसमें कसूर अवाम का भी है और हमारे बहुत सारे उन मौलवी हजरात का भी है
जिन्होंने दीन के अंदर अपनी तरफ से बातें शामिल कर दी हैं, और जिनमें से एक बात यह भी कर दी है कि बस सलाम फेरो और उसके बाद मुक्तदियों के सामने थोड़ी देर के लिए हाथ उठाओ और थोड़ी देर के लिए लब हिलाओ, पता नहीं कुछ पढ़ना है या नहीं पढ़ना, आखिर में जो है वो आलमीन कह के मुंह पे हाथ फेर लो, सारे समझते हैं कि अब छुट्टी हो गई। वो जो मसनून अज़कार जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए, जो बतलाए, जो समझाए, जो पढ़ाए, उनकी तरफ ध्यान ही कोई नहीं है, तवज्जो ही कोई नहीं है। अक्सर हमारे जो मौलवी हजरात खुसूसन जो गांव वगैरह में जो रहते हैं, जो मेरी तरह अनपढ़ होते हैं, पढ़ते नहीं है, पढ़ाई की तरफ तवज्जो नहीं होती, बस दो चार तकरीरें करनी आ गई और मसनद इमामत संभाल ली, बताते ही नहीं है कि नमाज के बाद कुछ अज़कार भी हैं जो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए। नमाज के बाद कुछ पढ़ने की चीजें हैं, कुछ दुआएं हैं जो नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखलाई और बतलाई है कि इन्हें पढ़ा जाए, और बड़ी अजमत की हामिल है। मुआज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया नहीं था कि मुआज़ अगर मेरे साथ मोहब्बत है तो हर नमाज के बाद पढ़ा कर रब्बे अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। सच्ची बात है, अल्लाह ताला अपनी रहमत फरमाए और हमें इस्तिकामत दे दे। रियाकारी मकसूद नहीं है, तरगीब मकसूद है। जब से मैंने ये रिवायत पढ़ी है, पहले शायद ये अल्फाज जो वो बेध्यानी में पड़ जाते थे, जैसे हमारे कारी साहब ने बचपन में हमें सिखाया, उसी तरह एक रूटीन बनी हुई थी, पढ़ते थे। लेकिन जब से ये हदीस पढ़ी है, उस वक़्त से हर नमाज के बाद सोच के ये अल्फाज पढ़ते हैं कि आका आपसे मोहब्बत है इसलिए पढ़ रहे हैं, रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। कोई भी काम आप उसकी फजीलत को सोच के करें, इंशाअल्लाह मजा भी आएगा, सुकून भी मिलेगा। उसकी फजीलत को सामने रखें। वुजू किया है, दुआ पढ़नी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़नी है। रूटीन बनी होती है बाज दोस्तों की, बाज नहीं भी पढ़ते, लेकिन इसकी फजीलत को सोच के सामने जब वुजू कर लिया है, दिल में ख्याल लाएं कि इमाम कायनात, आका कायनात, सरवर रसूला, फख्रुर रसूल, खत्मुर रसूल, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्ची और सुच्ची जुबान से, वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान से, वही वाली जुबान से ये ऐलान फरमाया है, वुजू करके जो बंदा ये कलिमात पढ़ लेता है, जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। ये सोच के कभी पढ़े तो सही, फिर आप देखें कि कितनी मिठास और कितनी लज्जत है इनके अंदर। नमाज को कभी सोच के पढ़ें, तर्जुमे पे ध्यान दे दे के पढ़ें। अल्लाह की कसम, आपको नमाज पढ़ने का इतना मजा आएगा और इतना सुकून मिलेगा, आप कहेंगे कि इसके अलावा दुनिया का कोई काम ही ना हो। लेकिन कभी हम ध्यान से पढ़े तो फिर हम तो इधर नमाज में खड़े होते हैं, उधर हमारा ध्यान जो है वो पता नहीं कहां कहां फिर रहा है। यही वजह है कि नमाज में दिल नहीं लगता। मौलवी साहब थोड़ी सी लंबी नमाज पढ़ा दें तो हमें जो है वो काफी गुस्सा आ रहा होता है नमाज के अंदर, पता नहीं इन मौलवियों ने तो काम ही है, इनको ये नहीं पता कि हमने जो फलां काम भी करना है, फलां काम। बहरहाल मौलवी को भी ख्याल करना चाहिए अपने मुक्तदियों का, लेकिन अगर हम दिल से पढ़ रहे हो ना तो सच्ची बात है, महबूब से बातें करते हुए वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता। महबूब से बातें करते हुए, अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर अर्ज कर रहा हूं कि ये आयतुल कुर्सी जो है इसमें कोताही ना करें। जब नमाज पढ़े और कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये 2 काम जरूर करें। रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तेरा जिक्र करूं, मैं तेरा शुक्र करूं और मैं तेरी इबादत अच्छे तरीके से करूं। और दूसरा काम, आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़ें, बहुत बड़ी फजीलत है। मेरे आका ने फरमाया है, मरते ही जन्नत में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल फरमा दे, अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल कर दे। अल्लाह अकबर। आइए इस आया मुबारका की तिलावत सुनिए और उसके बाद इसमें मालिक ने जो बातें की हैं उनको थोड़ा थोड़ा सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। तफसील में मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा तफसील में जाने की बजाय इजमाली तौर पे आपके सामने इसको रख दिया जाए। ये आयत तौहीद भी है, इसका मौजू तौहीद है और इसमें बयान अल्लाह की सिफात का है। पहले जुमले में अल्लाह ने एक दावा किया है, उसके बाद उस दावे की तस्दीक में मेरे मालिक ने 11 दलीलें जिक्र की हैं, 11 दलाइल
اس آیت کے اندر جو ہے وہ اللہ نے ذکر کیے. آئیے ذرا سنیے کیا فرمایا میرے مالک نے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ خالصتاً عقیدہ توحید کا اس میں بیان ہے. اس کو اگر تفصیل سے بیان کیا جائے تو کئی جمعے درکار ہیں. ایک ایک لفظ اس کا پورا پورا مضمون ہے, سچی بات ہے. آپ خود کوشش کریں, تفاسیر پڑھیں اس پہ. مفسرین نے, محدثین نے کتنا کام کیا اس کو. یہ فضیلت والی آیت ایسے تو نہیں بن گئی. سورہ الاخلاص چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے, لیکن فضیلت کے اعتبار سے کتنی بڑی ہے, ثلث قرآن کے برابر ہے. وہ فضیلت کیوں ملی؟ اس میں بھی عقیدہ توحید کا ذکر, وہ بھی سورۃ التوحید ہے, یہ آیت التوحید ہے. اس میں بھی توحید خالص ہے, اس میں بھی توحید خالص ہے. اور اس کا سب سے پہلا جو لفظ ہے اللہ نے ابتدا ہی اپنے پاک نام سے کی, اللہ. اللہ اللہ جو ہے یہ میرے مالک کا ذاتی نام ہے. یہ کسی اور کا ہو سکتا؟ کیوں جی؟ کسی اور کا نام اللہ نہیں ہو سکتا. اور یہ وہ نام ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ اس کو جتنا بھی مختصر کر لیں مراد اللہ کی ذات ہی ہوگی. جتنا بھی مختصر کر لیں. مثال کے طور پہ پورا ہے اللہ. اللہ کون ہے؟ جو ہمارا مالک و خالق. اگر اس کا پہلا الف ہٹا دیں پیچھے رہ جاتا ہے للہ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر پہلا لام بھی ہٹا دیں پیچھے رہ جاتا ہے لہو. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اگر وہ لام بھی ہٹا دیں پیچھے رہ جاتا ہے ہو. ہو کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. وہ وہی ذات ہے. تو اللہ ہی اللہ کا ذاتی نام ہے. جتنا بھی مختصر کر لیں مراد کون سی ذات ہوگی؟ اللہ کی ذات ہوگی. تو پہلے جملے میں اللہ نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور وہ کیا دعویٰ؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی, یعنی اللہ. اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, جس کے علاوہ سجدے کے لائق کوئی نہیں ہے. سجدہ صرف اسی کی ذات کو روا ہے. حاجت روا وہی اللہ ہے, مشکل کشا وہی اللہ ہے, داتا وہی اللہ ہے, دستگیر وہی اللہ ہے, غوث العظم وہی اللہ ہے, فریاد رس وہی اللہ ہے. سب کو زندہ رکھنے والا, ہمیشہ سے زندہ رہنے والا وہی اللہ ہے. خود بھی قائم اور ساری کی ساری دنیا کو, ساری کی ساری کائنات کو قائم رکھنے والا کون؟ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اور میں اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں ہے. اور آگے پھر الہ کی صفات ذکر کی ہیں کہ الہ کون ہوتا ہے؟ جو الحی ہو. الہ کون ہوتا ہے؟ جو القیوم ہو. الہ کون ہوتا ہے؟ جو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہو. الہ کون ہوتا ہے؟ جس کی صرف لہو ما فی السماوات وما فی الارض ہو. الہ کون ہوتا ہے؟ جو ولا یعودہ حفظہ ما ہو. الہ کون ہوتا ہے؟ جو العلی ہو. الہ کون ہوتا ہے؟ جو العظیم ہو. ساری کی ساری صفات 11 دلیلیں اللہ نے اس میں ذکر کی. آئیے پڑھتے ہیں کون کون سے دلائل ہیں. پہلی دلیل
फरमाया अल्लाह वो है जो इलाह है सबका, और उसकी दलील पहली क्या है? फरमाया अल हय्य, अल्लाह जो है वो हय्य है, इसके ऊपर अलिफ लाम का इजाफा भी है। अल हय्य, कौन है अल हय्य? जो हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा और सबको जिंदा रखने वाला है। उसके बगैर किसी की जिंदगी मुमकिन नहीं है। उसके हुक्म के बगैर कोई भी इस धरती के ऊपर एक सांस भी ले सकता नहीं ले सकता। एक सेकंड के 1000वें हिस्से की जिंदगी भी अगर है तो अल्लाह के हुक्म से, हमेशा से, ना उसकी इब्तदा ना उसकी इंतहा। वो कहते हैं कि किसी इलाके के अंदर एक काफिर जो था, उसने ये जनाब ढंढोरा पीटना शुरू कर दिया, तुम्हारे अल्लाह से पहले क्या था, तुम्हारे अल्लाह से पहले क्या था। मुसलमानों ने बड़ा कहा, भाई अल्लाह से पहले कुछ भी नहीं था। नबी रहमत अलैहिस्सलाम का फरमान है खुद कि अल्लाह से पहले कोई चीज नहीं थी, अल्लाह ही था। जब कुछ नहीं था तब भी अल्लाह था, जब कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह ही होगा। वो कहने लगा मुझे दलील दो। अल्लाह ने एक मुसलमान तालिब इल्म, जो दीन के तालिब इल्म थे, बाज़ ने उनसे मुराद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत ली है, बाज़ ने उनसे मुराद कोई और शख्सियात ली है। बहरहाल जो भी थे दीन के तालिब इल्म थे, उनके जरिए अल्लाह ने उस काफिर को लाजवाब किया। वो आए, कहने लगे भाई जरा 10 से उल्टी गिनती गिनना शुरू करो। 10 से उल्टी, 10 से पीछे। उसने कहा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक पे आके स्टॉप हो गया। वो फरमाने लगे भाई आगे भी पढ़ो। कहने लगा भाई एक से पहले तो कुछ नहीं होता। फरमाने लगे लोगों गवाह रहना, जैसे तेरी गिनती में एक से पहले कुछ नहीं है, हमारा अकीदा है हमारा मालिक अल्लाह भी एक है, अकेला है, उससे पहले भी कुछ नहीं है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, ना उसकी इब्तिदा ना इंतहा। अल हय्य, खुद भी जिंदा, सबको जिंदा रखने वाला। दूसरी दलील फरमाए अल क़य्यूम, हमेशा से कायम है, हमेशा कायम रहेगा और सबको कायम रखने वाला है, वो मेरा मालिक है। अल क़य्यूम, उसके हुक्म से जमीन व आसमान का निजाम कायम है। अगर उसका हुक्म उठ जाए, जहां से अल्लाह करीम अपने हुक्म को उठाते हैं, निजाम दरम बरम होकर रह जाता है। ये समंदर की लहरें हैं तो अल्लाह के हुक्म से कायम है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें, वो कहते हैं ततिल अमवाजु का अमसालिल जिबाल, पहाड़ों की मानिंद लहरें उठती हैं, अल्लाह के हुक्म से टकराती हैं, झाग बन के बैठ जाती हैं। एक एक लहर के अंदर इतना इतना पानी होता है, पूरे पूरे शहर को बहा देने के लिए काफी होता है, लेकिन मालिक का हुक्म सामने आता है, वहीं बैठ जाती है। कायम किसने रखा हुआ है? जब अल्लाह हुक्म उठाते हैं फिर सुनामी भी आ जाता है, फिर एक शहर नहीं शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। जब उसका हुक्म उठता है, जमीन को उसने संभाला हुआ है। आज की साइंस के मुताबिक ये डबल हरकत के बावजूद खुद भी हरकत कर रही है और सूरज के गिर्द भी हरकत कर रही है। इसके बावजूद हमें कभी एहसास नहीं होने दिया जनाब, हमारी जिंदगी सुकून से गुजर रही है। जब अल्लाह का हुक्म उठता है, जल्जले आते हैं, तबाही मचती है कि नहीं मचती? कितनी बिल्डिंगें बर्बाद हो जाती हैं, कितना कुछ हो। तो अल क़य्यूम, कायम रखने वाली जात कौन सी? इलाह वो होता है जो अल हय्य हो, इलाह वो होता है जो अल क़य्यूम। जिस पे मौत आ जाए वो इलाह हो सकता? क्यों जी, इलाह हो सकता है, बेशक एक आन के लिए क्यों ना हो। बाज लोग जो हैं उनका मौक़िफ़ है ना कि आक़ा कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं जी एक आन के लिए उन पे मौत तारी हुई थी, बस उसके बाद आका जिंदा है, दुनिया के अंदर जिंदा है, हमारे हालात को देख रहे हैं। अस्तग़फिरुल्लाह महाज़, अल्लाह के कुरान के खिलाफ है ये बात, अल्लाह के कुरान के खिलाफ है। जब कुरान में बार बार इस बात का जिक्र है तो हमें क्या जरूरत है ऐसी बातें करने? आका की अजमत, अगर हम आका की वफात को मान लें फिर भी कम हो सकती। हाँ, अगर हम वफात नहीं मानेंगे तो फिर हमारे ईमान में जरूर जो है वो दरारें आएंगी। तो फरमाया कि अल्लाह की जात हमेशा से जिंदा है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान
वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। हर चीज फानी है, बका किसकी जात को है? अल्लाह की जात को है, कायम बिज़ात। और तीसरी दलील जो यहां दी, ये भाई माशाल्लाह आ रहे हैं, सारे अहबाब जो हैं वो जरूर बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा मिलाया करें। अल्लाह ताला सब पे अपनी रहमतें फरमाए और अल्लाह जल्दी से जल्दी हमारे इन मंसूबों को पाए, तकमील तक पहुंचाए, ताकि आप अहबाब भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो कि ये क्यों जो है वो जुमे के अंदर ये बात छोड़ के दूसरी बात शुरू करता है। तो अल्लाह ताला अपना फजल फरमाए। ये ज़रूरियात होती हैं मसाजिद की और ये हम सब ने पूरी करनी होती हैं। सारे दोस्त इसमें ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा मिलाएं और इसके अलावा जो करना चाहें इंतज़ामिया के साथ ज़रूर राब्ता किया करें। पूरा हफ्ता जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह होता है। तो खैर, तीसरी जो दलील दी इस दावे पे, इलाह अल्लाह की ज़ात है और उसकी सिफ्त क्या है? फरमाया ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, न उसको ऊँग आती है न नींद आती है। सीना, सीना ये कहते हैं जो नींद का पेश खैमा होती है, या नींद से पहले जो हल्के हल्के झटके लगते। अल्लाह को झटके भी लगते, वला नौम, और उसको मुकम्मल नींद, नौम कहते हैं पूरी नींद को। अल्लाह को नींद भी आती, न उसे ऊँग आती है न उसे नींद आती है। ऊँग से भी पाक है, नींद से भी पाक है। हमें बतलाया इलाह वो होता है जिसे ऊँग भी ना आए, जिसे नींद भी ना आए। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नींद भी आया करती थी। जितने भी औलिया गुजरे सोया भी करते थे, ऊँग भी आ जाया करती थी। अल्लाह ही की जात है जिसे ऊँग भी नहीं है, नींद भी नहीं है। आप तजुर्बा करके देख ले, अगर अल्लाह ताला को ऊँग नींद हो तो ये जमीन व आसमान का निजाम कायम रह सकता? तजुर्बा करें आप, किसी शख्स को 2 गिलास शीशे के पकड़ा दें और उसको कहें भाई खड़े रहना है, कितनी को देर खड़ा रहे? 1 रात, 2 रातें, 3 रातें। थोड़ा सा झटका लगेगा, गिलास गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, रेजा रेजा हो जाएंगे। मालिक वो जात है जिसको न ऊँग है न नींद है। उसके अलावा जितनी भी हस्तियां, सबकी अजमत मुसल्लमा है, सब हमारे सर के ताज हैं, सबसे हमें प्यार है, सबसे हमें मोहब्बत है। सबकी अजमत, सबकी इज्जत, सबका वक़ार, सबका एहतराम वो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह की जात, हाजित रवा सिर्फ अल्लाह की जात, दाता दस्तगीर सिर्फ अल्लाह की जात है। क्यों? इलाह वो होता है ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसे न ऊँग आए न नींद आए। इलाह वो होता है जो हमेशा जिंदा रहे। इलाह वो होता है जो सबको कायम रखे। इलाह वो होता है जो न सोए ना उसे जनाब किसी किस्म की ऊँग आए। और चौथी दलील इसमें जो दी, फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, लहू उसी के लिए, लहू उसी के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ आसमानों में है वो भी उसी का, और जो कुछ जमीनों में है वो भी। आसमानों और जमीनों की हर चीज की मलकियत, हर चीज का मालिक व मुख्तार कौन है? अल्लाह की जात है। अल्लाह के अलावा कोई भी मालिक व मुख्तार नहीं है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहां खुद मिसाल बयान की, फरमाया कि अगर एक बंदा जो है वो अपनी दौलत खर्च करके, पैसे खर्च करके किसी गुलाम को खरीद के लाए और वो गुलाम सारा दिन काम करे, शाम को जो कमाई करे जाके किसी दूसरे को दे आए, क्या वो खरीदार जो है, खरीदने वाला जो है, जो उसका मालिक है उस गुलाम का, अगर उसका गुलाम ऐसी हरकत करे, सारी मेहनत दूसरे के लिए करे, सारी कमाई दूसरे के सुपुर्द कर दे, ये मालिक उसको पसंद करेगा? तो हम सब किसके हैं? किसने हमें पैदा किया है? हमें रिज्क कौन देता है? हमें हमारी प्यास कौन बुझाता है? हमारी मुश्किलात कौन हल करता है? तो अगर हम उस मालिक व मुख्तार को छोड़ के दूसरों के दर पे सजदे शुरू कर दें, उस मालिक व मुख्तार को छोड़ के औरों पे जाके जनाब औरों से मांगे,
सारी की सारी अपनी कमाई दूसरे की झोली में डाल दें, वो मालिक ऐसे गुलामों को पसंद करेगा? ये मिसाल मेरे आका ने दी है, ये मैंने अपने पास से नहीं बनाई। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मेरे आका ने ये मिसाल दे के बात समझाई है। जैसे एक मालिक कि जो हकीकी मालिक भी नहीं है, वो बेचारा कुछ वक्त के लिए जो है उसकी कुछ मलकियत रखता है, वो उसको खाना देता है, वो उसको पानी देता है। अगर उसका गुलाम जो है वो उसको छोड़ के किसी दूसरे को फायदा पहुंचाता है, उसको छोड़ के किसी दूसरे की नौकरी करता है, उसको छोड़ के किसी दूसरे की चाकरी करता है, वो मालिक ऐसे गुलाम को पसंद नहीं करता। तो जो हमारा मालिक के हकीकी है, जो हमारी एक एक सांस का मालिक है, जो हमारी जिंदगी के एक एक लम्हे का मालिक है, जो हमारे रिज़्क़ के एक एक जर्रे का मालिक है, अगर हम उसके दर को छोड़ के दर दर पे झुकते फिरें, सजदे करते फिरें, तो मालिक भी ऐसे बंदों को पसंद करता नहीं करता। अल्लाह मुझे और आपको अकीदा तौहीद की समझ नसीब फरमाए और सही मानों में अकीदा तौहीद पे अपनी जिंदगी को सही तरह गुजारने की तौफीक दे दे। आखिर दावा।